ओम शांति। आज के ভালো দিন 1 मई তাই তো আমরা চেষ্টা করব যে আজকে থেকে এক নতুন প্রসারণ শুরু করি, নতুন মাস নতুন প্রসারণ শুরু করি, করব তো ভালো দিনে কিছু একটা সংকল্প নিতে হয়। তো আজকে আমরা কি সংকল্প নেব, কি সংকল্প নেব, কি প্রসারণ করব আজকে থেকে? বাপ সমান বনে তো বিরাট বড় প্রসার, তার জন্য প্রথম স্টেপটা কি নেব, পাক্কা করতে হবে। প্রথম লেসনটা পাক্কা করতে হবে, কেন সম্পূর্ণ হওয়ার একটাই স্টেপ নিজেকে আত্মা মনে। পবিত্র তো তখনই হতে পারবে যখন নিজেকে আত্মা মনে করবে, সবাইকে আত্মা নজরে দেখব, তাই তো। তো সম্পূর্ণ বা সম্পন্ন বা বাবা মতো যদি আমরা হতে চাই, তাহলে প্রথম স্টেপটা আমাকে স্টার্ট করে যেতে হবে। এই প্রথম স্টেপ যদি হয়ে গেল, তাহলে প্রসার সহজ হয়ে যাবে না কঠিন হয়ে যাবে? বাবাকে মনে করা সহজ না কঠিন? সত্যিকারই সহজ, সত্যি। আত্মা প্র্যাকটিস হয়ে গেলে সহজ হয়ে যাবে। যখন বাবা রোজ বলেন সবচেয়ে সহজ হয় বাবা কি ইয়াদ, কিন্তু আমাদের মনে হয় সব থেকে কঠিন বাবার যোগ, তাই কি না? কঠিন মনে হয় কি হয় না? হয় কি হয় না? কঠিন কেন মনে হয়? আত্মার পাঠটাই কমপ্লিট হচ্ছে না। তো আত্মার পাঠটা কীভাবে কমপ্লিট হবে, কীভাবে সহজ হবে, তার উপায়টা কী আছে? তার জন্য কী করলে আমরা আত্মাভিমানী হয়ে যাব? কোনো সহজ উপায় আছে? যদি কেউ বলে দেয় তাহলে আমিও করতে পারব। আত্মা অভিমানী হওয়ার সহজ উপায় জানা আছে কারো? কে হলো, কেউ কিছু বলছেন না কেন? হ্যাঁ কি না কিছু তো বলবেন। কে জানা আছে একটা বলো? কেউই বলবেন না? বাবার নাম স্মরণ করতে হবে। আত্মা মনে থাকলেই তো বাবার নাম স্মরণ হবে। আর দেহাভিমান থাকলে তো এই চাই ওই চাই, এটা ঠিক ওটা ঠিক, এখানে নজর যাচ্ছে ওখানে নজর যাচ্ছে, ওই রকম কেন হলো, এটা কী করে হলো, এটা কেন হলো, না না কিউ ক্যা ক্যাসে মে চলা যাতা। আত্মা স্থিতি কী করে থাকবো তার সরল উপায়টা বলে দাও। এটা যদি হতে পারি তাহলে আমি হয়ে যাব, এটাই পারছি না। একজন করে বলো, নাহলে আমি শুনতেই পারবো না। আত্মা মনে করতে হবে সেটা তো জানি, কিন্তু সবাইকে আত্মাও দেখবো আত্মা মনে, কিন্তু হচ্ছে না, বারবার দেহাভিমান চলে আসে। তো সরল উপায়টা কিছু আছে? আচ্ছা, রোজ মুরলি শুনলে হয়ে যাবে? এত বছর ধরে শুনছি এখনো হয়নি। পবিত্রতা আসলে হয়ে যাবে। পবিত্রতা তো আত্মা মনে করলে পবিত্রতা আসবে, না হলে তো সেটাও হচ্ছে না। ব্যর্থ চিন্তা আসা তো অপবিত্রতা। তো ব্যর্থ তো চিন্তা আসছে, আসছে কি আসছে না? শ্রীমতটা কি আছে? আচ্ছা, বাবার সাথে যদি মনের ভালোবাসা আছে তবে সম্ভব। এখন আমাদের মনে ভালোবাসা আসেনি বাবার সাথে? মানে ভালোবাসা এসছে কি আসেনি? এসেছে? আমার তো মনে হচ্ছে আসেনি। মনের ভালোবাসা কাকে বলে? যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে তো কঠিন হতে পারে না। ভালোবাসারই অভাব। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে সব কিছু করার জন্য আমরা রেডি হয়ে যাই, সব কিছু ত্যাগ করার জন্য রেডি হয়ে যাই। ব্রহ্মা বাবা তো শুধু সাক্ষাৎকার পেয়েছিল, তাও সব কিছু সমর্পণ করে দিল। কী আধারে করলো? আমাদের কাছে তো স্যাম্পল রয়েছে, মামা বাবা দাদি দিদিরা অনেকেদের স্যাম্পল আছে, অনেক ক্লাস শুনি, অনেক কিছু জেনে গেছি, তাও আমাদের সহজ মনে হচ্ছে না। ব্রহ্মা বাবার পক্ষে তো সহজ হলো কী করে? কী করে সহজ হয়ে? সাক্ষাৎকার পেলে সহজ হয়ে গেল। তারপরে এত পরিস্থিতি আসলো, এত ঝুট ঝামেলা হলো, অবিশ্বাসও হতে পারতো আমি সাক্ষাৎকার ঠিক করেছি কি করিনি, অবিশ্বাস হতেই পারতো। কিন্তু ব্রহ্মা বাবার জন্য সহজ হয়ে গেল, আর আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে, এটা কি করে হচ্ছে? ও বাবা বিশ্বের মালিক হবে, আমরা দাসী হবো নাকি? হ্যাঁ, আমরা ফাইনাল আগে থেকে করে রেখেছি আমি দাসী হবো, তাই জন্য আমাদের সঙ্গে সহজ হতে পারে না, তাই নাকি? বাবার সাথে যোগ ছিল, ও যোগের আধারে সহজ হয়েছিল। আমাদের যোগ হচ্ছে না বলে সহজ হচ্ছে না। ট্রাস্টি হতে হবে। আর নিশ্চয় বুদ্ধি নেই নাকি আমরা? হ্যাঁ, তারপর নিশ্চয় বুদ্ধি কী করে হয়? বাবার উপরে নিশ্চয় আছে বলে তো আমরা সবাই এসেছি। কেমন?
এত বছর ধরে ক্লাস করছি, রোজ সকালবেলা উঠছি, রোজ মুরলি শুনছি, নিশ্চয় আছে বলেই তো করছি, তাও আত্মাভিমানী হতে পারছি না। ওটাই তো সহজ উপায়টা বলে দাও না। দেহভান ভুলতে পারছি না, তার কোনো উপায় আছে? বাবার সাথে কম্বাইন্ড হতে হবে। কম্বাইন্ড কী করে হওয়া যায়? কখন হব? কম্বাইন্ড কখন হব? রাইট, হলে হতে পারে, কিন্তু কম্বাইন্ড হব কী করে? মনে আজকে বাবা বলেছে নেশায় থাকতে হবে। যেখানে নেশা আছে না সেখানে সব কিছু সম্ভব। একজনকে নেশা কিছু খাইয়ে দাও, তারপর যা খুশি করাও, করবে কি করবে না? নেশা যদি থাকে তাকে দিয়ে যা কিছু করানো যায়। ভগবানকে পেয়েছি, সাধারণ কথা। নেশা রাখতে হবে, আমি কাকে পেয়েছি, কি পেয়েছি, এই নেশা যদি থাকে সব কিছু সম্ভব। বাবা আমাকে কি বানাচ্ছে, আমরা अनेक बार अनुभव শুনেছি जानकी दादी, मैं कौन, मेरा कौन और मैं क्या बनना। ब्रह्मा बाबा को नशा था, এই দেহে ত্যাগ করবো আর আমি কৃষ্ণ হব, গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ হবে। ব্রহ্মা বাবার কি নেশা ছিল, আমি সাক্ষাৎকার পেয়েছিল, আমি কৃষ্ণ হব, বাস নেশা উঠে। আমাদের নেশাই উঠছে না, এর জন্য সব কিছু কঠিন মনে। নেশা ওঠাতে হবে যে সত্যিকারই আমি কে, আমি কাকে পেয়েছি, আমি কি হতে চলেছি। তাহলে সহজ হবে কি হবে না? হবে কি না? সহজ উপায় নেশা। বাহ কি পেলাম, বাহ কি পেয়েছি, বাহ বাবা তুমি আমার জন্য এত দূর থেকে এসছো, বাবা তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বানাতে এসেছো, সত্যযুগে প্রিন্স বানাতে এসেছো, বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছো, বাহ বাবা আমি তো একটু কোনো ভাবিনি। যদি এরকম বাহ বাহ করতে থাকি কাকে পেয়েছি, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে কি হবে না? আত্মাভিমানী হওয়া কঠিন ব্যাপার না, প্র্যাকটিস একটা নেশা, और সেকেন্ড হলো প্র্যাকটিস। তো প্র্যাকটিস রাখতে হবে। অনেকবার এখানে অনেক ক্লাসে শুনেছি কীভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, অনেকবার শুনেছি, যখনই এসেছি তখনই শুনেছি। একটা বাচ্চার অনুভব শোনায়নি যে একটা বাচ্চা প্রথম যখন অ্যাডমিশন নেয় তখন টিচার তাকে কী বলে, এ এ এ লিখে আসো, एक पाता दो पाता, रोज एक पाता लिखते बोलबे, खाली क क क क लिखे आसो, ख ख ख ख लिखे आसो। एक बच्चर लागिए देय खाली क ख ख ख ख শেখাতে, और पाता पर पाता भरातेই থাকে, লিখতে থাকো লিখতে থাকো লিখতে থাকো। তারপরে আমরা অনেক মোটা মোটা বই পড়লাম, অনেক কিছু বিশ্লেষণ সব কিছু জেনে গেলাম, সব কিছু মনে নেই। মনে আছে কি? কিন্তু ক খ গ ঘ এখনও মনে আছে, আছে কি না? ABCD এখনও মনে আছে। কী করে মনে আছে? প্র্যাকটিস। একটাই জিনিসকে বারবার লিখেছিল, বারবার লিখেছে বাচ্চাটা, যখন সব থেকে ছোটো বাচ্চা, কিন্তু এখন সেটা মনে আছে। তো যে কোনো জিনিসকে যদি আমরা বারবার লিখি, ভাবলে হবে না। ব্রহ্মা বাবা কী করেছিল? খাতা পর খাতা ভরে দিয়েছিল, 2 বছর প্র্যাকটিস করেছিল। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये যশোদা आत्मा है, ये फलाना आत्मा है, ये आत्मा, খাতা ভরে দিয়েছিল। এত মেহনত করার পর প্র্যাকটিস হয়ে গেল, मैं आत्मा हूँ और ये भी। যখন এই আত্মার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন কোনো ব্যর্থ চিন্তা আসবে, এটা কেন হলো, এটা ঠিক হয়নি, কোনো ব্যর্থ নেগেটিভ কারো প্রতি আসবে। বাবা অনেকবার মুরলিতে বলেছে, কি বলেছে? बच्चे तुम्हारे ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बोला या नहीं बोला? অনেক কিছু হবে, যদি আমার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে যায় আমরা দুঃখী হব কি হব না? ফেল হয়ে যাব কি হয়ে যাব না? এখন মনে করুন কাশ্মীরে এত ঝড় ঝামেলা হলো, কার কার মনের উপরে তার ছাপটা পড়লো, এটা ঠিক হয়নি। কার কার মনে হয়েছে? সবার মনেই হয়েছে। কেউ আমরা হাত তুলি বা না তুলি, হয়েছে কি হয়নি? এটা ঠিক হয়নি, এটা কিছু করা উচিত, হ্যাঁ গভর্নমেন্টকে এরকম করা উচিত, এটা অনেকেদের মনে এসেছে। রাইট, আসা উচিত ছিল, উচিত ছিল, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? উচিত জানি, তার মানে আমরা জানি, তা আমাদের মনে কেন আসে? নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো, পাগলের মতো নিজের সাথে কথা বলো, এটা কি ঠিক হয়েছে? এটা বাবার শ্রীমতের ভিতরে আছে? এটা আমার মনে কেন আসলো? আমরা সবাই জানি কর্মের হিসাব কিতাব চুক্তু হওয়ার সময় এসে গেছে, আর হিসাব কিতাব চুক্তু না করে বাড়ি কেউ ফিরবে না। জানি কি জানি না? সময়টা আরও আসবে না, এসে গেছে। এখন যারা মারছে তার জন্য আমাদের মনে মধ্যে ঘৃণা আসছে না? তার মানে এরাও তো কোনো সময় কিছু করেছে কি করে না? এমনি এমনি ওকে মারলো, ওকে ছেড়ে দিল কেন? তাহলে তাকে কেন ছেড়ে দিল? একজনকে মারলো, একজনকে ছেড়ে দিল, কারণ কি? অনেকেরাই তো ঘুরতে গিয়েছিলো, অনেকেরা বেঁচে আসলো,
অল্প কিছু লোক মারা গেল, কেন এরকম হলো? কর্মের হিসাব কিতাব কার সাথে কীভাবে জুড়ে রেখেছে আর কীভাবে চুক্ত করতে হবে, এটাই হলো। বাবা বলে না হর চিন কল্যাণকারী, হ্যাঁ या নেই? আমাদের মনে কী করে আসলো এটা ঠিক হয়নি, তার প্রভাব আমার মনের উপরে কী করে পড়লো? যা হয়েছে ভালো হয়েছে। এখন যদি আমি এই কথা বলি আর নেকেদের মনে আসবে, বাবা দিদিরা এরকম কথা বলে, এটা কি ভালো হলো? এরকম কী করে হয়? আসতেই পারে, আসতে পারে কি আসতে পারে না। তো আমাদের সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে যে সত্যিকারই কী, কেন এরকম হচ্ছে, কী যা হচ্ছে ভালোর জন্য হচ্ছে। সবাই হিসাব ক্লিয়ার করে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। বাবা সবাইকে শান্তি দাও, শক্তি দাও। এখন আমাদের কাজ কি? সবাইকে শান্তি দাও, শক্তি দাও। যেটা হওয়ার হয়ে গেছে, আমরা কিছু করতে পারছি না, তার প্রভাব নিয়ে আমরা ডিস্টার্ব হতে থাকবো, আমাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা আসবে, তো আমরাও তো ফেল হয়ে যাচ্ছে। বাবা তো বলছে অনেক কিছু আরও হবে, এখন তো কিছুই হয়নি, তখন আমি নিজেকে কীভাবে ঠিক রাখতে পারবো? তো এখন আমাদের প্রয়োজন কী আছে? বাবার কাছে যাও সবাইকে, তো নিজের পার্টটাকে জানো। এখন লাস্ট পার্ট, সারা বিশ্বেরকে গতি সদ্গতি দেওয়ার পার্ট বাবা আমাদের জন্য রেখে দিয়েছে। দাদি দিদিরা স্থাপনার কাজটা করলো, আর এই লাস্ট কাজ দাদিরা তো অ্যাডভান্স পার্টিতে চলে গেল, হ্যাঁ, আর আমাদের বাবা সামনে রেখে দিল। এখন এই লাস্ট পার্ট কে করবে? সবাইকে মুক্তি, জীবন মুক্তি কে দেবে? কী করে দেব? আমি যদি নিজেই মুক্ত না হই, কেন কী ব্যাপার যদি আমার মধ্যে আসছে, তো ওদেরকে মুক্তি দিতে পারবো, মুক্ত করতে পারবো? একটা ভাবো। আমরা রোজ মুরলি শুনছি, রোজ অমৃত বেলা উঠছি, কিন্তু আমরা কি করছি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো, কতটা এগিয়েছি? এখনও ছোট ছোট কথায় প্রভাব আমাদের উপরে আসছে। ও আমাকে এরকম বলে গেল, জানো তো, প্রভাব আসছে। ওর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না, জানো তো। এখন ছোট্ট ছোট্ট কথায় আমাদের মাইন্ড সবসময় ডিস্টার্ব থাকে, তার মানে আমরা কত দেহে ভানে থাকি। কবে আত্মার পাঠ পাক্কা করব, প্রথম লেসনটা কবে পাক্কা করব, আর কবে আমরা 7 দিনের লেসনটা কমপ্লিট করব? একটু চিন্তা করো, বাবা আমাদের কি নজরে দেখতে চাইছে, আর আমরা এখন কোথায় আছি। রাইট? আজকে থেকে যেন এই পাঠটা আমরা যেন পাক্কা করতে পারি। পারবো? করবো? শুরু তো করি, আজকে থেকে লেখা শুরু করি। দেখবেন 8 দিনও লাগবে না, পরিবর্তন ভিতর থেকে শুরু হয়ে যাবে, যাত্রা শুরু হয়ে যাবে, বাবার সাথে ভালোবাসা আসতে শুরু হয়ে যাবে। এই আত্মার পাঠটাই শুধু পাক্কা করো, সব কোয়ালিটি অটোমেটিক চলে আসবে আমাদের। এটাই শুধু পাক্কা করতে হবে। আর না হলে আমরা যোগে বসে আছি, মন স্থির হচ্ছে না, সব সময় কিউ ক্যা এটা ওটা সব দুনিয়ার কথা মনে আসছে, বাবা মনে আসছে। তাই জন্য এই পাঠটাই আমাদের প্রথম পাক্কা করতে হবে। আজকে বাবা সেই পাঠটাই পাক্কা করিয়েছে। তো আজকে বাবা 1-5 মুরলি बाबा बोले छे, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। चढ़ा नशा कारण ऐसा देखते पाচ্ছেন না, বাবা সবাইকে দিতে এসেছে, আমাকে দিতে শুধু দিত তবে তো খুশি আসতো না। কে কে দিতে এসেছে? বাবা বেহদ का আনলিমিটেড সম্পত্তির মালিক বানাতে এসেছে। বাবা সামনে আনো, আমি কি হতে চলছি। यहाँ हद की कोई बात नहीं। क्या बोला पापा ने? হাত দেখি কই কাউন্টিংয়ের ব্যাপার না। আমার বাবা আমাকে 2টো এসি লাগিয়ে দিল, আমার বাবা আমাকে এটা দিয়ে দিল, নো। বাবা কতটা দিচ্ছে? আনলিমিটেড। এই নেশায় থাকো, বাহ বাবা তুমি আমাকে মালিক বানাতে এসেছো, বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছো, वाह। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो। बाबा को कैसे याद करेंगे? बहुत नशा से, खुशी से, प्यार से बाबा को याद करो, उमंग से बाबा को याद करो, तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। सुना? जितना खुशी होगा उतना ये दुनिया भूलते जाएगी, और जब खुशी नहीं है तो ये दुनिया का ही कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, इसी में फंसे रहेंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोंट कर पक्की करनी चाहिए? কি ঘাঁটতে বলেছে বাবা, বারবার ঘাঁটতে থাকো।
কি ঘাঁটো যত ঘাঁটবো ততই সেন্ট বেরোবে না কি ঘাঁটবো বারবার ঘাঁটতে বলেছে उत्तर हम आत्मा हैं क्या घांटना है मैं आत्मा हूँ वो भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा आत्मा हूँ एकदम पक्का करो सब और सब जो 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 जे जे जेटा করছে सब ভালো হচ্ছে ভালো করছে কিছু खराब क्यों करते ही हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं आत्माएं हैं बच्चे परमात्मा है बाप आत्माएं हैं बच्चे परमात्मा है बाप अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है खुशी हो रहा है 5000 বছর পর বাবা আর বাচ্চাদের মিলন হয়েছে কিরম খুশি থাকা দরকার এত বছর পরে হয়েছে তো আমি চিনতেই পারছি না ভালোবাসা কোথায় থেকে আসে না মিলন হয়েছে খুশি হয়েছে এতদিন পরে মিলন হয়েছে চিনতে পারলাম হ্যাঁ বাবা তুমি কোথায় ছিলে এত বছর তুমি আমার ছাড়া থাকলে কি করে হ্যাঁ একদম বাবা বলছে হ্যাঁ এতদিন পরে দেখা হয়েছে কিরম খুশি থাকা দরকার यह बात बार बार घोंट घोंट कर पक्की करो यह बात बार बार घोंट घोंट कर पक्की करो कौन सी बात मैं आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा है और वो हमें बेहद का वर्षा देने जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिट जाएगा देह अभिमान आलादा करे सराते हबे ना अंधकार के যতই আপনি ডান্ডা নিন যাই নিন সরান সরবে খালি লাইট জ্বালিয়ে দিন অন্ধকার অটোমেটিক সরে যাবে তো দেহ अभिमान কাটানো একটাই রাস্তা নিজেকে কি করো বারবার आत्मा हूँ ये पाठ पक्का गीत है जो पिया के साथ है ओम शांति बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं चढ़ रहा नशा कार साथे बसे आছি नशाई नहीं चढ़ रहा যখনই মুরলি শুনবো ভিজুয়ালাইজ করো বাবার সামনে বসে আছি বাবাকে আমার ঝুড়িতে এটা দিল বাবাকে আমার জন্য এসেছে তবে সে খুশিটা আসবে তবে রত্নটা ভিতরে জমা হবে এমনি কমন শুনলে কিছুটা শুনছিস কোনোটা এমনি উপর থেকে চলে যাচ্ছে কিন্তু বাবা বারবার জানানোর চেষ্টা করছে बच्चे किसके साथ बैठे हो यह है बड़े ते बड़ा बाबा सबका बाबा है এই জন্যে খুশি আসে না কেমন আমার বাবা শুধু থাকতো তবে ভালো লাগতো না सबका बाबा है कॉमन हो गया ना सबका है ना अच्छा है खुशी है बाबा आया हुआ है बाप से क्या मिलता है क्या मिलता है यह तो सवाल ही नहीं उठता बाबा থেকে কি পাচ্ছে এটা কি জিজ্ঞেস করার জিনিস বাবার যা কিছু কার জন্য আছে তো কি পাচ্ছি সেটা জিজ্ঞেস করা দরকার নেই বাবা বলছে बाप से मिलता ही है वर्षा यह है सबका बेहद का बाप जिससे बेहद का सुख बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है क्या मिलता है अनलिमिटेड যার कल्पना करा जाए ना वह है हद की मिल्कियत कोई के पास 1000 कोई के पास 5000 कोई के पास 10 20 50 करोड़ अरब होंगे अब वह तो सब है लौकिक बाबाएँ और हद के बच्चे यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं किस लिए बेहद की प्रॉपर्टी लेने दिल में आस तो रहती है ना बाबा संपत्ति प्रति आशा तो थाके कि थाके ना सिवाय स्कूल के और सत्संगों आदि में कोई आस नहीं रहती कहेंगे जे कोनो सत्संगे गेले कोनो आशा थाके ना যাই দেখি যদি পাই যাই দেখি ওরা বলছে করে দেখি যদি কিছু ঠিক আশা থাকে না যে হবেই কিন্তু একটা স্কুলে যদি বাচ্চারা পড়াশোনা করে কলেজে ও জানে এটা পড়লে আমার বাস এই বছর পর এটা আমার চাকরি ফিক্সড आशा থাকে कि থাকে ना बाबा ने कहा कहेंगे शांति मिले वह तो मिल नहीं सकती आश्रमे गेले कोनो सत्संगे गेले शांति पावा जाबे पाबे टेम्परेरी হয়তো পাবে পার্মানেন্ট তো পেতে পারে না
यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनना, नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। हाँ, एक स्टेट राजा होते हैं ऐसे नहीं, किसका मालिक बनने आए हैं? तब नेशा नेशा देखते बच्चे विश्व का कि কিরম নেশা থাকা দরকার। এখানে কিসের জন্য এসেছি? বাবা আজকে আমাদের তাহলে তফা নিয়ে এসেছি হাতে করে, আমি বিশ্বের রাজা হব হব। কোনো রেসপন্ডই নেই, মানে ফিক্সড করে আমাদের মনে মধ্যে ফিক্সড হয়ে গেছে আমরা হতে পারবো না, বলে লাভ নেই। অনেক দাদি দিদিরা আছে, অনেক দাদারা আছে, অনেক মেহনত করেছে, ওরাই হবে, তাই তো? আমরা হবই না। হব হব এখন একটু নেশা উঠলো মনে হচ্ছে এত দেরি পরে। बाबा ने कहा कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। सबाई एक रकम पूछे था किंतु यह कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो तो क्या कहेंगे? किसके पास जाते हो? बाबा के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते? क्या लेने जाते? क्यों जिज्ञेस करबे केन जाচ্ছ ওখানে কি করতে যাও? बाबा ने कहा यह तो कोई और समझ न सके। এটা যদি আমরা বলবো बेहद का वर्षा लेने जाते हैं, क्यों बुझते? बाबा ने कहा कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके बोलो बोलो उनके पोतरे पोत्रियाँ। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। आज बाबा बार बार पक्का करा रहा है मैं आत्मा हूँ, एटा बार बार जनो पक्का करो। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। कितना नशा होना चाहिए? हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं? बाबा कहते बहुत नशा होना चाहिए। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बार। कितना बार? एक ही बार। हाँ कौन? संगम जुगे। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अनेक बछर पर आत्मार मिलन परमात्मार साथे। कौन कौन सी आत्माएं? तुम आत्माएं। कौन सी आत्माओं का मिलन अनेक बछर पर হয়েছে? বাবা আমাদের জন্য কেন বললো অনেক বছর পরে আমাদের মিলন হয়েছে বলে? সত্যযুগে প্রথমে কে এসেছিল? আমরাই এসেছিলাম, অনেক বছর পরে আমরাই তো বাবার সাথে মিলন করছি। बाबा ने कहा यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। ठीक बोलছে बाबा? এত দুঃখ জন্ম নিতে নিতে পাঠ প্লে করতে করতে এত টায়ার্ড হয়ে গেছি, এবারে চাইছি কোনো সাধু সঙ্গত করলেই হয়তো মুক্তি পেয়ে যাব, শান্তিতে থাকবো, তাই কি না? समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु परंतु ऐसे है नहीं। ওরা যদি সত্যিকারই জঙ্গলে শান্তি পেত তাহলে তো শহরে এখন এসে আর आश्रम খুলতোই না, কেমন जंगल ही बसे থাকতো। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निर्वृत्ति मार्ग का ज्ञान दे और पवित्रता सिखलानी है। साधु सन्यासी देर तो काश की
सबाई के सिखाते हो तो जे भाई संसारे थे क्यों की करे पवित्र थाका जो आजकल तो देखो शादियाँ कराते रहते हैं। हाँ, पवित्रता ज्ञान के देवे ओरा तो सरासरि बोले दे संसारे थे के पवित्र थाका असम्भव होते ही पारे ना। तो बाबा कहते बच्चे এখন তো ওর বিয়ে করাতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যাদের বিয়ে হয় তাদের বাবা মাও বলে महात्मा जी আজকে আমাদের বাড়িতে বিয়ে আছে একটু আশীর্বাদ দিতে চলে আসবেন। আর महात्मा जीरा बोले হ্যাঁ 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 ঠিক আছে चले। चलो आशीर्वाद दिया तब तक भी ठीक है, अभी तो खुद शादी भी कराते रहते हैं। আমার জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দেবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ খুঁজে দেবো। একটা ছেলে খুঁজে দেবেন আপনার এখানে আসে কি? तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्म इंद्रियों को बस में करते हो और अशुद्ध खे कर्म इंद्रिय के बस करे और তোমরা হয়েছে कर्म इंद्रिय बस হয়েছে? এখনও শুনতে চাই না, কিন্তু কানে কানে কাছে এসে বক 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 করে তো শুনতেই হয়। কি এখনও বলতে চাই না, মুখ থেকে বেরিয়েই যায়। कर्म इंद्रिय बस হয়েছে তো? হয়েছে? হয়েছে? কিছুটা হয়েছে, তাই তো? कैसे बस होगी? कर्म इंद्रियाँ योग बल से शीतल हो जाएंगे। बाबा खाली करते बोले ना, तार उपायटाও बोले दें যে এরকম করো তাহলে शीतल ठंडा हो जाए। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है जो कोई चंचलता ना हो। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का बस होना इम्पॉसिबल है। क्या बोला बाबा ने? যোগ ছাড়া কেউ ভাবে আমার রাগটা চলে যাক, আমার শান্তি চলে আসুক, আমার এটা হবে সম্ভব? कर्म इंद्रियाँ কখনোই কেউ बस করতে পারে। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को बस कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों बरस कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों बरस हुए हों तो फिर बात ही याद ना हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते? लाख लाख বছরের কথা হতো তাহলে তো কোনো কিছু মনেই থাকতো না মন্দির বানাবে কী করে। কিন্তু যেহেতু অল্প সময়ের কথা, তার ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছে, তাই তো मंदिर बनाए। तो बाबा ने कहा तो वहाँ कर्म इंद्रियाँ शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियाँ है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियाँ बस नहीं हो सकती। कारा बोले साधु सन्यासीरा बोलছে অত সহজ না कर्म इंद्रिय के बस करा। और बाबा क्या बोलता है কি করে হবে? আমরা সব জানি কিন্তু যোগেই মন বসে না, সব ঠিক লাগে। হ্যাঁ, এখন দেখুন মন কত ভালো আছে, একাগ্র আছে, এখন কোনো চঞ্চলতা নেই। মুরলি খুব মনে শুনছি, কিন্তু যেই যোগ করব ঘড়ি দেখতে শুরু করব, নানা রকমের চিন্তা শুরু হয়ে যাবে, কী হয়েছে না। हाँ, बाबा ने कहा बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को बस करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। बाबा की শেখাচ্ছে আমাদের, কি বানাচ্ছে, এরকম বাবার ভালোবাসে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে, বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বাবা বাস, হ্যাঁ তুমি আমার সাথে থাকো, তুমি আমার পাশে থাকো, বাস বাবা বসে বসে বাবার সাথে গল্প করো। কে যোগ করছে না করছে দেখা দরকার আছে, কে এলো না এলো জানা দরকার আছে, বসে যাও। হ্যাঁ, বাবা এত ভালোবাসে, বাড়িতে এত ভালো যোগ লাগে না, সেন্টারে এসে চুপ করে বসে যাও বাবার কমরায়, আগে থেকে চলে আসো, বাস বসলাম বাবার কাছে। এত বাবার সাথে যেন ভালোবাসা জেগে ওঠে। बाबा ने कहा प्रेम के आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। हाँ, 5000 বছর पर एक बार ही पाई। बाबा को उछल आई ना, ब्रह्मा बाबा तो शुद्ध साक्षात्कार করেছিল, একবারে নেশা उठे गल, उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए,
खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, জানা ছিল বাবাকে? আগে থেকে জানতো বাবা? সাক্ষাৎকার হলো, এত সুন্দর দুনিয়া হবে, তুমি এই কৃষ্ণ হবে, ব্যাস নেশা উঠে গেল। কী করে হবে? কিছুই জানার ছিল না। আমরা কিন্তু সব জানি, জানি কি জানি না? আমাদের নেশা ওঠে না কেন? আমাদের তো বেশি নেশা ওঠা দরকার, কেমন? परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, या कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। ज्ञान तो अनेक परे धीरे धीरे जान लो, किंतु प्रथमे तो কিছুই জ্ঞান ছিল না, তাও বাবার এত নেশা ছিল। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। আমরা তো প্রথম থেকে স্কুলে এসে গেছি, আমরা সব কিছু জানি। হ্যাঁ, প্রথম যারা শুরুতে এসেছিল জ্ঞানে, ব্রহ্মা বাবা বলুন বা দাদিরা বলুন, তারা বাবা রূপের শুধু ভালোবাসাই পেয়েছে। তখন এত পড়াশোনা খুব বেশি ছিল না। তারপরে বাবা কী পার্ট প্লে করলো? টিচারের পার্ট প্লে করলো। আবেগ বাপ দাদার মাধ্যমেও বলুন, এমনিও কত পাঠ পড়ালো আমাদের, কত কিছু পড়িয়ে দিল। আর লাস্টে বাবার কোনটা পাঠ চললো? আপনি লাস্ট মুরলি শুনবেন, খালি বাবা আশীর্বাদই দিয়ে গেল। সব সময় খালি সদ্গুরুর পাঠটা বাবা প্লে করেছে। আর এখন বাবার কোনটা পাঠ চলছে জানি, আমরা সব জানি তো। তার মানে হিসাব কিতাব চুক্ত হওয়ার সময় হয়ে গেছে। এইবারে পরিস্থিতি পরিস্থিতি পরিস্থিতি, চারদিকে শুধু পরিস্থিতি ছাড়া কিছু আর দেখতে পারবে না, শুনতে পারবে না। তাই জন্য বাবা বলছে এখন হিসাব কিতাব কমপ্লিট হওয়ার সিজন শুরু অলরেডি হয়ে গেছে। তো আমাদের কী করতে হবে এবারে? সাক্ষী। লাস্ট পার্ট হলো সাক্ষী দ্রষ্টা। যত আমরা সাক্ষী হতে পারবো ততে আমরা বিজয়ী হতে পারবো। শিব বাবা সব জানে, কিন্তু কীভাবে সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে কি পারে না? এত জ্ঞান দিচ্ছে, এত ভালোবাসা দিচ্ছে, তারপরে তার কথা আমরা শুনি না। বাবার রাগ আসে কেন আসে না? কেন আসে না? বাবা কি মনে করে নেয়? এর পাঠই মনে হচ্ছে এটাই আছে। আর আমরা কি বলি, কেন এরকম করবে? দুটোর মধ্যে তফাৎ হয়ে গেল কি হয়ে গেল না? বাবার পাক্কা আছে যে যার যেটা পাঠ সেটাই বাজাবে, কিন্তু আগে থেকে বাবা বলছে না যে এরকমই এর পাঠ আছে, এদের পড়িয়ে লাভ নেই। বলছে কি বলছে? লাস্ট সো ফার্স্ট। এতটাই বাবা আমাদের উপরে আশা রেখেছে। তারপরেও যদি আমরা করি না, তখন বাবা বলে দেয় বোধহয় এদের পাঠ নেই। কিন্তু আমরা কখনো এটা ভাবতে পারি না, আমাদের সাথে সাথে তার প্রভাবটা पड़े जाए। तो बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। हाँ, बच्चियाँ कहती है अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो। कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? पाठशाला में। क्या करने आए हो? विश्व का मालिक बनने आए। वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आस भी पूरी होती है। हाँ, सबाई तो एटाई चाय ना हमारे बच्चा किरम होबे, खूब भालो, तार चाल चलन खूब भालो, तार एक्टिविटी सब किछु जेन भालो होक, एरकमই তো বাচ্চা চায় না। এরকম চায় যে দুষ্টুমি করতে থাকো কিন্তু বাচ্চা হোক, কেমন? হ্যাঁ, যদি কোনো বাচ্চা বেশি দুষ্টুমি করে আমরা কি বলি, এর থেকে না হলেই ভালো হতো, বলি কি বলি না? তার মানে সবাই তো ভালোই চায়। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह आस भी तुम्हारी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी। हाँ, বাচ্চা তো এখানে অনেক আছে, কিন্তু এখানে বাচ্চারা কি আছে? तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। তুমি কিরম বাচ্চা চাও? শ্রীকৃষ্ণের মতো বাচ্চা हो, তাই তো? पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, बहुत धक्के खाए हैं। সেই হিসাবে বাবা কোনো ধাক্কা দিচ্ছে না, কোনো কঠিন পাঠ পড়াচ্ছে না যে বাচ্চারা পারবে না। বাবা অলরেডি জানে আমার বাচ্চারা অনেক কষ্ট পেয়েছে, আর এদেরকে কী কষ্ট দেব। তাই জন্য বাবা আমাদের খুব সহজ পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সহজ পথে দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে না? মনে হয় সহজ, সহজ কিন্তু না। কেমন? বাবা সহজ পথ দেখাচ্ছে না কঠিন আছে?
कठिन ना सहज आवाज़टा तो সেভাবে আসছে না तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते थे যখন বাবাকে পাইনি তখন কত খুশি আনন্দ করে বৈষ্ণো দেবী যেতেই হবে অমরনাথ বছরে একবার তো যেতেই হবে আর হেঁটে হেঁটেই যেতে হবে हाँ যতই কষ্ট হোক আমি কিন্তু দিদি হেঁটেই হেঁটেই যাই কেমন कितना खुशी से करते थे अमरनाथ पर जाते हैं समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो रियल अमर कथा कौन सुन रहा है अमर बनने के लिए अमरनाथ बाबा किसको सुना रहा है मुझे सुना रहा है किसको सुना रहा है ये कथा मिस करना चाहिए एक वर्ड भी मिस होना चाहिए दादी दीदी को मुरली का इतना महत्व था एक तो वर्ड जनो मिस ना हो टाइम से पहले बाबा आने के पहले पहुंच जाना है एक वर्ड अगर मिस हुआ और उसी में मेरा कल्याण छिपा हुआ था तो कितना लॉस हो जाएगा इसलिए बाबा बार बार समझाने की कोशिश करता बच्चे भगवान सुना रहा है इस मुरली से तुम्हारा कितना प्यार होना चाहिए बाबा ने कहा अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं तुम आए हो बाप के पास जानते हो यह भाग्यशाली रथ है इसने यह लोन पर लिया है किसने शिव बाबा ने हम शिव बाबा के पास जाते हैं उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे सब আমরা জানি ভগবান এনার শরীরে এসেছেন উনি নিজে বসে আমাদের পড়াচ্ছেন এখন আমরা ওর মত ছাড়া আর কারো মতে চলতে कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो कहते हैं এখন বাবা ছুটি দিয়ে দিয়েছে যে যার যেটা জিজ্ঞেস করা জিজ্ঞেস করে না तो एक जन ऐसे बाबार काছে বলছে बाबा हम बोल नहीं सकते हैं तो बाबा क्या करेगा भाई क्या जवाब देगा আমার খুব ইচ্ছা হয় সবাইকে বোঝাই আমি বলতে পারি না এবারে বাবা কী করবে আশীর্বাদ দিয়ে দেবে কী করবে হ্যাঁ কী বলবে यह तो तुम पुरुषार्थ करो बाबा की करबे এখন তুমি বলতে পারছো না বললে তো হবে না চেষ্টা করো চেষ্টা করলে কি না হয় तो बाबा कहते बच्चे यह तो तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसमें बाबा क्या कर सकते हैं তুমি যদি কিছু প্র্যাকটিস করবে না তো বাবা কি করবে তুমি একটু একটু করে প্র্যাকটিস করো বাবা তো অনেকবার উপায় বলে দিয়েছে কি বলে দিয়েছে बच्चे কোনো ছবির সামনে বসে পড়ো আর বসে বসে একা একা ভাবতে থাকো এর উপরে কী বলতে হবে কীভাবে বলতে হবে কী করে বোঝাতে হবে দেখো যে কোথায় আটকাচ্ছি কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করে না যে এখানে কী বলো একবার বলে দাও না তো বাবা कहते प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ सहज है কিন্তু খালি বলবো আমি পারি না তাহলে হবে এক অনেক দিদিদের অনুভব আপনারা অনেকবার হয়তো শুনেছেন একটা দিদি ছিল জয়পুরে শুনেছেন তো এই কাহিনীটা একটা দিদি ছিল যে একদম পড়াশোনা জানেই না পড়েইনি কোনো দিন এক ক্লাসও পড়েনি এবারে সে তাকে বাবা মাউন্ট আবুতে একবার রেখে দিল ও খুব খুশি হয়ে গেল জয়পুরে থাকতো তারপরে আবার বাবা ওকে জয়পুরে ছিল তারপরে বাবা ডাকলো আবার ওই দিদির ফোন আসলো বাবা ওকে পাঠিয়ে দাও আর বাবা ওর বড় দিদিকে ডেকে নিয়েছে কোনো কারণে যখন বাবা বড় দিদিকে ডাকছে তো বড় দিদি বলছে বাবা তাহলে ওকে পাঠাও তবে তো আমি আসতে পারবো আবার বাবা ওকে বলছে যাও তুমি और 2-4 दिन আগেই 2-1 दिन আগেই ও বাবার কাছে গিয়ে বলছে বাবা আমি তো পড়তে জানি না তখন বাবা বলা बच्चे बाबा तुमको पढ़ाएगा तुम आना ও ভাবলো এখনই আমি বাবা আমাকে বলেছিল বাবা এখনই শুরু করলো পড়াতে আর আবার আমাকে জয়পুর পাঠিয়ে দেবে তাহলে আমি আমার পড়াশোনা কী করে হবে আমি কী করে পড়বো बाबा ने बोला बच्चे तुम जाओ बाबा तुमको वहाँ पढ़ाएगा ও এসে গেছে এবারে ওর তো লজ্জা করছে ক্লাস কে করাবে আমি তো পড়তে জানি না মুরলিও পড়তে পারি না এবারে আমি গিয়ে করবোটা কি চিন্তা করছে আবার বাবার यादे বসেছে बाबा ने बोला बच्ची तुम अमृत वेले डायरी और पेन लेके आना जब योग में बैठेगी अमृत वेले तो क्या करना डायरी पेन लेकर आना और अमृत वेला जखन वो जोगे बसतो बाबा उसको पढ़ना सिखाया 1 सप्ताह के अंदर वो मुरली पढ़ना सीख गए आश्चर्य हो गेलो যখন दीदी आसलो तो दीदी के मुरली शोनाচ্ছে दीदी ओके जिज्ञेस करছে तुमको कौन पढ़ाया बोलती बाबा पढ़ाया এখন কে বিশ্বাস করবে বাবা পড়ায়া হ্যাঁ নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাই বা বোন কে তো হয়তো পড়িয়েছে বারবার दीदी ओके जिज्ञेस করছে तो बोलছে नहीं ऐसे ऐसे बाबा ने मुझे पढ़ाया और आज के वो तो सेंटर संभाल दीजिए क्योंकि उसका पाठ उसी समय से संदेशी का था तो वतन में जाती थी और बाबा उसको पढ़ाता तो कहने का मतलब है आपका इच्छा और संकल्प होना चाहिए
और जब आपका संकल्प होगा तो बाबा आपसे वो काम करा ले। और आज वो देखिए कितना है। तखुन वो दीदी बाबा क्यों बोले, चलो बाबा हाँ, आप जैसे यहाँ दिखते हो ना वहाँ बहुत अच्छे दिखते हो। वही दीदी सुनिए, चलो बाबा के एक से दीदी अहमदाबाद था के। तो बाबा का कहने का मतलब है कि बच्चे आप थोड़ा पुरुषार्थ करो। आप अपनी जो भावते पारछे ना, जो बाबा माके की नजरे देखছে, बाबा माके की বানাতে চাইছে আমরা ভাবতেই মেন পারছি না। যদি আমরা ভাবতে পারতাম না আমাদের সত্যিকারই পা মাটিতে থাকতো না। বাবা আমাদের সব জানিয়েছে, দাদি দিদিদের কিছু জানাই ছিল না। আমরা সব কিছু জেনেছি, খালি একটু সংকল্প করতে হবে বাস। বাবা তো মেরা और मैं और কোনো দিকে যেন নজর। এত বড় প্রাপ্তি এক জন্মের নয়, 21 জন্মের নয়। बाबा ने एक बार मुलेते बोले कि बोले अपना लास्ट जन्म भी देख लो कितना अच्छा है या नहीं है। दुनिया में नज़र घुमाओ और अपने को देखो, ये लास्ट जन्म भी हमारा इतना अच्छा है तो इसके पहले का जन्म कितना अच्छा होगा। और ये संगम युग रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है। जैसा एक बार रिकॉर्डिंग करेंगे वही वही चलेगा या दूसरा चलेगा। इसका मतलब 21 जन्म बाबा बोल छे किंतु एटा 84 जन्म की कहानी रिकॉर्डिंग हो रही है। थोड़ा सा मेहनत, प्राप्ति बहुत ज़्यादा। हाँ, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बैंक से ऑफ़र मिल जाए कि आपका इतना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, सब भीड़ लगाना शुरू करेगा या नहीं करेगा। हमको पता है एक का कितना गुना, कितना गुना, कितना कितना करना चाहिए। किसी को देखने का ज़रूरत है कि जमा करछे ना करछे, देखने का ज़रूरत है। मुझे करना है। आज से किसी के लिए भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले। कैसी भी आत्मा है सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। पक्का करो मुझे क्या करना है, जो मैं करूँगी मेरे पास वही घूम के आने वाला है। आएगा या नहीं आएगा, पक्का है या नहीं है। क्यों सोचना, क्यों इधर उधर देखना। बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, इतना नशा हमको होना चाहिए। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। देखा कितना सुंदर बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को बस करो, ये सहज रास्ता है, सहज है ना है? दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, केउ राग करले कि करो, सुनो नहीं। किंतु আমরা कान दिए सुनी कि बोलছে देखी, एक लुकियो सुनी कि बोलছে सुनी कि बाबा बोलता है सामने भी बोले तो सुनो मत, कान बंद कर लो। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से पूछो श्रीमत पर हम कितना चलते हैं। अगर आपने सुन लिया तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने नहीं सुना, सुनते हुए नहीं सुना, मतलब क्या है, बाबा उस आत्मा को शीतल करो, बहुत गुस्सा में है, वो क्या बोल रहा आपके कान में आएगा, क्योंकि आप अपना संकल्प चला रहे हो, आप उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख रहे हो। अब वो जो भी बोल रहा है तो आपको गुस्सा सुनाई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने में व्यस्त हो। और हम लोग, बाबा कुछ बोलता है और हम लोग करते कुछ है, और फिर बोलते हैं कि करबो एत सारा दिन कचकच कचकच होले हमारो माझे माझे राग चलेई आसे। আমি অনেক চেষ্টা করি কিন্তু তাও চলেই আসে। তাই চেষ্টা করছিলাম, সত্যি কথা। চেক করো বাবা কিরম দেখতে চাইছে, সবসময় চেক করো। বাবার নজর আমার উপরে আছে, বাবা সবসময় আমার সাথে আছে, हाँ कि ना, हाँ कि ना। একটা নাটক হয়েছিল, হ্যাঁ, ধর্মরাজ ওর পিছনে পিছনে ছিল। হ্যাঁ, তুমি কী কী করছো, 10 মিনিট টাইম দিয়েছে তোমাকে, আর তুমি কী কী করছো দেখছে। হ্যাঁ দেখছে, बेचारा सब भय एकदम कुछ है ना, এটা করবো না, ना ठीक। और हम लोग सब जानते हैं, हाँ या नहीं। क्या सोचना चाहिए, बाबा साथ है ना, हाँ, तो क्या करना चाहिए। कोई भी व्यर्थ संकल्प जब आता तभी उसी समय साथ साथ बोलो, अरे बाबा सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे बाबा साथ में है, तुम आए हो ठीक है अब जाओ। साथ साथ तुरंत उसको ऑर्डर दो, आए मिला अब जाओ। उसको चलाओ मत, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। जानो तो एरम बोलो, हाँ आगे मने चलबे, तारपरे मुखे आसबे, तारपरे कर्मे आसते कत देरी लागबे। तो बाबा बार बार कोई सुना भी रहा है तो क्या करो, क्या करो, योग में बैठ जाओ। थैंक यू, साथ साथ बोलो थैंक यू, हिसाब किताब चुकते हो जाए। आजकल तो यही विधि लौकिक दुनिया वाले भी सिखा रहे हैं,
कि कोई भी आपके लिए नेगेटिव कर रहा है, लेकिन आप उसको क्या करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहो, बोलते रहो, तो हिसाब ख़त्म हो जाएगा। ये बाबा ने अभी लौकिक दुनिया वाले भी सिखाना शुरू कर दिया है, और भगवान हमको बहुत पहले सिखा दिया है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है, वो बहुत प्यार से बाबा साथ में रहकर चुप तो करा रहा। तो थैंक यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? আমি এরকম কি পাপ করেছিলাম, আমার পিছনে এত লোকেরা কেন লেগে থাকে, আমি বুঝতে পারি না, এই না ওই না, সারা দিন চিন্তা, সারা দিন টেনশন। যোগ লাগবে, শক্তি পাবো, विजयी होबो। बाबा का बनकर भी अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो हम बनकर के क्या किया? सोचो और पूछो अपने आप से कि मैं बाबा के पास आई हूँ, इतना अच्छा टीचर मिला है, इतना एक ही बात को बार बार बोल रहा है, एक बार नहीं, और फिर भी हम फेल होते हैं। शर्म आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपने आप से शर्म आना चाहिए कि हम कैसे स्टूडेंट हैं। एक बात बाबा का याद नहीं कर सकते हैं, एक बात बाबा की मान नहीं सकते हैं, हम कैसे हैं? तो किसी को मत देखो संगम युग में। अगर बाप समान बनना है, अपने को देखो, अंदर की गहराई में जाओ। अभी भी बहुत गंदगी अंदर में है, उसको चुन चुन करके निकालना है। अभी भी ये क्यों आया, पूछो अपने आप से, उसको हटाना है। बाबा ने कहा कोई गुस्सा भी करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? जो जैसा है उसको वैसा देना चाहिए, नहीं? तभी तो सीखेगा, हाँ या नहीं? क्या करना चाहिए? मार खाते रहना चाहिए? क्या करें? आप अच्छे हो बोलेगा हमको सिखा रही है, बोले हाँ। और गुस्सा आ जाएगा, तब तो और गुस्सा आ जाएगा। क्या करें? मन ही मन में, मन ही मन में क्या बोलेंगे? बाबा इस आत्मा को शांत करो, बहुत दुखी आत्मा है, बहुत परेशान आत्मा है, इसलिए ऐसा कर रही है। हाँ, आप कोई शराब पी के मारता तो हम लोग क्या बोलते हैं? शराबी है ना, इसलिए ऐसा करता, राइट? तो तुमको क्या सोचना है? बाबा इस आत्मा को भी शक्ति दो, शांति दो, क्षमा करो। बाबा ये आत्मा बेचारी बेबस है, अभी तुरंत शुभ संकल्प पहुंचाना शुरू करो। हाँ, तो देखना उसके अंदर वो अंदर ही अंदर यहाँ तक जाएगा, और वहाँ उसके बाद उसका ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखो, भगवान जादूगर है ना, हमको जादू सिखा रहा है, और ये सारा आप जादूगर की तरह देख पाएंगे कि सचमुच में भगवान कितना बड़ा जादूगर है। हमने खाली सोचा और वो अपने आप ठंडा हो गया, अपने आप बोलता है मुझे क्षमा कर देना। पहले के जो दीदी दादी नहीं, जो पहले की माताएं थी ना, उन लोग का अनुभव सुनिए, कि माताओं का, पुरानी माताओं का, पति मार रहा है, खून निकल रहा है, बाबा बाबा बाबा, कितना वंडरफुल, वो ऐसा कर रहे हैं, और वो बाबा की याद में मस्ती में बाबा के साथ हैं। उनके पति को साक्षात्कार हो रहा है, ये देवी है, और उनके चरण में बैठ जाते हैं। तो ये पहले शुरू में इतना लोग अनुभव करते थे, अभी हमारे में पावर ही नहीं है, हमारा योग बाबा से लग ही नहीं रहा है ठीक से। जब कोई ऐसा करता এবার কি হবে, এরকম করবে, আমি এরকম কিন্তু করব, बोलो तेरे কি करा जाए, एक करा, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं। अरे भगवान ने सारा उपाय बताया हुआ है, भगवान इतना अच्छा टीचर मिला हुआ है, किसी से पूछने की, किसी को बोलने की ज़रूरत है? ज़रूरत है? बैठ जाओ बाबा के पास। लॉकडाउन में आप लोग ने बहुत क्लास सुना होगा, हाँ, आतंकी लोग मार रहे हैं, और वो बोलती बस मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, बैठिए बाबा के पास। उन सबको साक्षात्कार हरवा चले गए, कुछ नहीं किया। तो भगवान का जो काम हो कितना चमत्कारी काम है, खाली करके तो देखो। ब्रह्मा बाबा को जब मारने आया था तो क्या दिखाई दिया था उन लोग को? लाइट, इतनी लाइट, सामने लाइट होगी तो पीछे का लोग दिखाई देगा। ये सब होने वाला है, अभी फिर से होने वाला है। हमारी अगर बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं होगा, शुभ संकल्प नहीं होगा, हमको भी, हमारा भी जो अभी वहाँ सुन रहे हैं ना, वो सब हमारे साथ भी होने वाला है। इसलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ता है, बच्चे समय से पहले सुधर जाओ। बाबा को पता है क्या क्या होने वाला है, बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चों को कष्ट हो। और एक एक बच्चा को जब ऐसा परिस्थिति आएगा, फिर हम बाबा को अगर दोष देंगे, बाबा তোমার জন্য তো আমি এটা করেছিলাম, রোজ আমি অমৃত বেলা উঠতাম, রোজ কোনোদিন ক্লাস মিস করিনি, আমি এই করেছি, আমি অত সেবা করেছি,
लाभ होवे किसी बोले, अपने को कितना परिवर्तन किया बाबा ये देखेगा। हाँ, परीक्षा में कागज बोलेगा आपने क्या लिखा, कितना पढ़ा है। आप दिन रात पढ़े नहीं पढ़े वो कोई देखने वाला नहीं है, वो आपका पेपर देखेगा तो आपने कितना पढ़ा था। तो परिस्थिति के समय अगर हम फेल होते हैं तो क्या होगा। बाबा को जो भी बोलो, टीचर अच्छा नहीं है, टीचर ठीक पढ़ाया नहीं, क्या फ़र्क पड़ता टीचर को, बाबा को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो बाबा जादूगर भी है और आपको जादू सिखा रहा है। आप खुद ठीक रहेंगे, खुद शांत रहेंगे, कूल रहेंगे तो दूसरों को भी वो शक्ति आप दे सकेंगे और वो आत्मा भी, कैसी भी आत्मा है, वो परिवर्तन हो जाएगी। जब हम बड़े बड़े डाकू को परिवर्तन कर सकते हैं तो ये आत्माओं को परिवर्तन करना कौन सा बड़ा बात। तो बाबा ने कहा तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएँ पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्या है, एर परे मोरार परे ज्ञाने आसबो तो पुरुषार्थ करे नेबो परे। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके। क्या बोला बाबा ने, ध्यान से सुनो, ये अंतिम जन्म है। आमी एसेছি तुम्हारे निये जाबो। कि किसको लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, पवित्र आत्मा को। अब पवित्र आत्मा जा नहीं सकती। एबारे बाबार जोगे पवित्र हो, नाले शास्त्रिक है पवित्र तो होते ही है। महापतित आत्मा जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। राइट, क्या हुआ, हाँ या ना? हाँ, और बाबा ने बोला मैं नहीं जानता हूँ। अब क्या हुआ भाई, भगवान भी झूठ बोलता है। देखो सबाई बोल से सब जानता है, सचमुच में भगवान सब जानता है, हाँ या नहीं? जो बोलते बाबा सब जानता है, हाथ उठाओ, देखो सब जानता है। अच्छा, जो बोलता बाबा सब नहीं जानता वो हाथ उठाओ। दोनों में हाथ नहीं उठा रहा, क्या हुआ? बाबा सब जाने हाँ कि ना? तार माने बाबा झूठ बोल छे। बाबा एक नहीं बोल लो अंतर माना अंदर की बात को नहीं जानता बाबा। हमारे अंदर क्या है बाबा नहीं जानता, सब जानता है। बाबा ने बोला ध्यान से सुनिए, मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, हाँ या नहीं? यह सब है अंधश्रद्धा। ये भगवान सब जाने यह है अंधश्रद्धा, तार माने भगवान जाने ना। राइट, এটা আমরা মানতে পারবো না। जाने कि जाने ना, जाने कि जाने ना, बाबा को ज़रूरत ही नहीं है जानने की। क्यों जानेगा वो? भगवान को ज़रूरत है जानने की? भगवान ने सबके अंदर चिप लगा दिया है। आपके पास सीसी कैमरा है ना, देखा सबने सीसी कैमरा देखा है? उसमें हर समय बैठ के देखते रहने की ज़रूरत है? जब आपको चाहिए सीसी कैमरा खोल के देख सकते हो कौन आया था, नहीं आया था, क्या किया, नहीं गया। राइट, देख सकते हो ना, जब चाहिए देख सकते हो। लेकिन सब समय उसके सामने ताक के बैठे रहना जरूरी है ज़रूरी? तो भगवान को भी हमारे अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बाबा चाहे तो आपका सारा टीवी बड़ा स्क्रीन पर दिखा सकता है आपको ही कि आपने क्या क्या किया, देख लो। अभी क्या समझ में आया? ज़रूरत है जानने का? क्या ज़रूरत है? कचरा, आपको पता है कलयुग में सब कचरा ही भरती, उसको जानने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है जानने का? हमको सबके बारे में जानने का ज़रूरत है? यहाँ कोई अच्छा मिलेगा? पता है ना, बाबा ने सारा बता दिया है। अब एक एक के अंदर क्या है नहीं हमको जानने का ज़रूरत नहीं है, भगवान को भी जानने का ज़रूरत नहीं। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, मतलब क्या है? राजयोग सीख रहे, मतलब क्या है?
बाबा कहते हैं राज्यों का मतलब ही है राजा बनने का योग। तो हम सभी क्या बनने वाले हैं? पक्का? आवाज़ तो आया नहीं, आवाज़ तो आया नहीं। राजा बनने वाले हैं, बनेंगे नहीं तो पक्का बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मतलब क्या है? बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। एर मानेटा क्या हलो? बाबार मत और गत अर्थात बाबार जे मत आछे से दुनियार कारो साथे मेले ना। कौन सी मत? कौन सी मत? श्रीमत को तो मत बोलते हैं ना, बाबा की श्रीमत ही है। तो बाबा कौन सी मत देता है जो सबसे न्यारी है? मत के साथ क्या बोला बाबा ने? गत। गत का मतलब है सदगति, सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति की जो बाबा मत देता है वो सबसे अलग। बाबा ने कहा मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं। राइट? जे कोनो माला আমরা সবাই সিমরন করেছি যখনই মালা হাতে তুলি আগে এরকম করব। राइट? और जब माला शेष हो जाए तখন এরকম করে রেখে দেব। राइट? तो किसको नमस्कार किया? फूल। ऊपर में क्या है? फूल। फिर 2 दाना, कौन है? ब्रह्मा बाबा सरस्वती। तारपर 108 दाना, कौन है? संपूर्ण विजयी आत्मा। तो बाबा के साथ साथ जो पूरा सहयोगी है उन सबको हम बाबा के साथ साथ याद करते हैं। तो बाबा ने कहा आँखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा, बाबा रचता है? सृष्टि की रचना बाबा ने किया ना? कौन किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। सृष्टि की रचना कौन करता है? क्या हुआ? शिव बाबा ही करता है ना? तो हाँ बोलो ना, सृष्टि की रचता शिव बाबा है ना? हाँ या नहीं? तो बाबा रचता कहेंगे बाबा को? हाँ या नहीं? हाँ। अभी बाबा ने क्या बोला? शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। ताले के रचना करें? ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा बोलছে আমি रचता নয়, তাহলে কে আছে? ब्रह्मा बाबा रचता হলো শিব বাবা নেই, এরকম হয়? তাহলে শিব বাবাই তো নাকি? হ্যাঁ, মনে আছে আমরা ধ্যান দিয়ে মুরলি শুনি না। মুরলি যদি ধ্যান দিয়ে শুনবো, এটা তো ছোট সহজ সহজ কোশ্চেন। बाबा अनेक बार मुरलीते बोले, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा ये किसी ने बनाया है? के बनिए छे? ये तो अनादि अविनाशी है। ताले बाबा रचता हलो के करे? यदि बाबा के बोलबो बाबा रचना करेছে, তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করব তাহলে বাবাকে কে রচনা করেছে? তাই জন্য बाबा अनेक बार बोले कि ये तीनों को किसी ने बनाया नहीं है, ऑलरेडी बनाया है। राइट? ताले बाबा की करे? बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? सतयुग के पहला से शुरू किया ना, कलयुग के अंत में रचना किया, कब किया? फिर प्रश्न उठेगा। घड़ी जब बनाया पहले 12 लगाया कि पहले 1 लगाया? हाँ, क्या करेंगे? सेट कर दिया, घड़ी अपने आप घूम रहा है। राइट? बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। किसको रचता है? ब्राह्मणों की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना ऑलरेडी शुरू से चल रही है और चलती ही रहेगी, ये कभी परिवर्तन नहीं है। मोहम्मद धर्म किसने स्थापन किया? मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? मोहम्मद ने। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया? तो बहुत रचता हो गया। राइट? तो बाबा बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही है, आत्मा तो ऑलरेडी है ही है। आत्मा को बाबा रचता नहीं है, रचता है?
आत्मा और परमात्मा ये अविनाशी है, इसका विनाश ही नहीं है तो रचेगा क्यों? बाबा ने कहा सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवता, तो बाबा सिर्फ परिवर्तन करता है, नया बनाता नहीं। राइट? अभी शूद्र को देवता कौन बनाए? बाबा कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया में है देवता है, अब असुर को देवता कौन बनाए? तो बाबा बनाता है, तो अर्थात परिवर्तन करता है बाबा। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, किस लिए? देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव बाबा तो है ही है, वो तो अविनाशी है, वो उसका कभी विनाश नहीं होता। चलिए, बाबा ने कहा शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माएं तो बाबा ने क्या कहा? अविनाशी बाप शिव। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही है। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जो बुद्धिमान हैं वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। आज क्या बोला बाबा ने? मुख्य बात एक तो मुझे याद करो, दूसरा आत्मा समझो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनो। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे ज्ञान मार्ग के। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, ज्ञान सबार माथे ढुके गए छे, किंतु जोग एखोनो ठीक मतो होच्छे ना। अभी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसको पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए? क्यों जाने? लक्ष्मी नारायण के कोथाय गेलो एखन? राजाई कैसे भी एरा राजा की करे हलो, विश्व मालिक की करे हलो, एबार कोथाय चले गेलो क्यों ही जाने ना। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अभ्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब ख़त्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें? जब जेने गे दुनिया और थाकबे ना तो कार प्रति आकर्षण थाकबे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर तक, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुद्धबुद्धा है जो सागर में मिल जाता है। यह सब क्या है? यह सब क्या है? मोक्ष पाना अच्छा है या खराब है? फटाफट हाँ या ना बुझते पारलाम ना, माঝখানে একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল নাকি? কি মোক্ষ পানা ভালো না খারাপ? ভালো। আমরা এটাই চাইছি তো, আর এই সংসারে যেন না আসি, মুক্তি পেলেই ভালো বেঁচে যাই। কেমন বারবার আসা, বারবার জন্ম নেওয়া, বারবার মরা, এটা আর ভালো লাগছে না। কেমন হ্যাঁ কি না? যারা যারা চাইছে মুক্তি ভালো হাত তুলুন তো দেখি। ও ভাইরা মানুষ বেশি ডিস্টার্ব হয়ে গেছে জন্ম নিতে নিতে। হ্যাঁ, বেশিরভাগ ভাইরাই হাত তুলছে। মাতারা সবাই ভালো নাকি? মুক্তি কেউ চাইছেন না? চাইছেন? হাত তুলছেন কোথায়? হাত তোলো। জন্ম মরণে আর আসতে চাইছে না, যারা বলছে আমরা আর আসতে চাইছে না তারা হাত তোলো। একদম মুক্তি পেলে ভালো। যারা হাত তুলেছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে খুব হাঁপিয়ে গেছে, আর ভালো লাগছে না এই সংসার। কেমন? তাই জন্য মুক্তি চাইছে, তাই তো? বাচ্চারা যখন ঝগড়া করে না নিজের মধ্যে, তখন বলবে আর কালকে থেকে খেলতেই আসবো না, তোর সাথে খেলবোই না। কেমন? কিন্তু যখন কালকে হবে না তখন ভাববে না যাই একটু, ওরা খেলছে আমিও যাই। কেমন? এইরকমই কলযুগে আমরা এত দুঃখে কষ্টে আছি যেন ভাবছি যে মরলে যেন বাঁচি, আর আসতে আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যখন শতযুগে এত সুখ দেখবো তখন কি ইচ্ছে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একা একা এখানে বসে আছি, আমিও যাই আমিও যাই। তো বাবা বলছে মুক্তি তো ভালো নয়, তাই কিনা? তো একটু শাস্তি। তো বাবা বারবার জানানোর চেষ্টা করছে, बच्चे
आत्मा बुदबुदा लोकेरा बोले बाबा बोलছে ना जो सागर में मिल जाती है आत्मा की बुदबुद ना। आत्मा तो ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, क्या बोला बाबा ने, जेहेतु आत्मा अविनाशी से कखनी मुक्ति पेते परमानेंट मुक्ति पाबे ना, अर्थात तारपरे आसबे ना, ऐसा होते ही पाबे ना, ताकि आसते तो होबे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। तुमको यहाँ कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगड़ कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। ठीक बोलते बाबा, कर्म सन्यासी होते पारे, जरा जंगले गेছে তারা कर्म सन्यासी ना, ওরা তো কিছু কাজ করে না, তো कर्म सन्यासी হলো কি হলো না। হ্যাঁ, বাবা বলছে উঠা বসা খাওয়া এসব কর্মের गिनतीতে আসে, তাই জন্য कर्म सन्यासी होतेই। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार, योग बल की ताकत से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, बस में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। नंबर 2, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म और माया अर्थात माया खत्म। किछु बुझते पारलें? दादी दीदीरा मायार उपरे कि करे विजयी हलो? एकटा मुरलीते कतबार पड़तो? যারা মুরলির রহস্যটা বুঝে গেছে, মুরলির মানেটা বুঝে গেছে, তারা মুরলি অ্যাটেনশন দিয়ে শুনবে, মুরলি শুনবে, মুরলির কথাটাই সবাইকে বলবে। তা যারা মনে রাখতে পারবে তাই তো সবাইকে বলবে। আর যারা আর মুরলির মধ্যে এরকম কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই যে নেই, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর, প্রত্যেক সমস্যার সমাধান কোথায় আছে? মুরলি। আমরা দাদি দিদিদেরকে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে, কোনো সমস্যা শোনাতে গেলে কি বলবে ওরা? বাবা মুরলি में ऐसे बोला है। तो मुरली थे सब उत्तर जखन पावा जाए तो मुरली सुनो, मुरली सबाई सुनाओ, बंसुरी बजाओ, फालतू बातें ना सुनो ना सुनाओ। तो ये साज अगर बजता रहे, आज बाबा एटा पड़े आज के बाबा एटा, तो व्यर्थ थे আমরা मुक्त हब कि हब ना, विजयी होते ही पारबो। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। जे कोनो अनुभवी यदि हो जाए ताहले आमादेर कोनो टेंशन थाकते अनुभव छाड़ा ही टेंशन आसे। अब व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निर्वृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। संकल्प वो अपवित्रता जनो नाश। तो बाबा कहते यही तुम्हारी रॉयल्टी है, यही तुम्हारी पर्सनालिटी है। जितना आप पवित्र बनेंगे दिव्यता ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। ओम शांति।